I have my yoga teacher. Not only she my yoga teacher, she's my inspiration. She's my inspiration at multiple levels. Discipline, love, fashion, living life. What she does the best. Constantly learning on herself. Admires. Uh, these are the things that I admire. I apologize. So, Shami, I in Kashmir, for the first time, I'm getting time to spend with you and to get to know you little more than what I see. So tell me something. What is it about you that people don't know? What makes you the person you are? It's a very tough question. Anything. I think what people know me, what I am. I mean, I try to be on the surface what I'm inside, and it has taken me maybe decades or more than that. Because what you are from inside, first you'll have to accept yourself, submit to yourself, and then you have to be yourself. Even most of the time, we project the way people want us to be to see us. And not projecting, being yourself needs a lot of guts, a lot of contentment with yourself, a lot of acceptance with yourself. And over a period of time, I have worked on that. And जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ. हम सब इंसानों में सिर्फ एक गोल होना चाहिए और आप उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं. मैक्सिमाइजिंग ऑन ह्यूमैनिटी, मैक्सिमाइजिंग ऑन योर स्किल सेट, ये कहाँ से आता है? आई थिंक मुझे लगता है वन ऑफ द रीजंस और वन ऑफ द सोर्सेज और इंस्पिरेशन इज फॉलिंग इन लव विथ योर सेल्फ. And when you fall in love with yourself, you fall in love with all aspects of yourself. So whatever the kind of work which you do, which brings contentment, you want to be the best in that. It does help you. Pehle to it helps you on your personal level, and then you start extending that experience to others. So I think, like everybody, if they look into themselves, they become an inspiration to somebody. Like you are an inspiration to me. The kind of discipline I see in you. Perhaps that's one of the reasons why I keep connecting with people, though those who have these traits which are very important. Being content with self, being very disciplined. मतलब आप जितनी content हैं, साथ ही साथ contentment doesn't mean कि बस छोड़ दिया, बस वैसे ही रह गया. You're constantly striving to be the best from what you had been, not from others. So that two combination, which are two extremes, which is also yoga, hatha yoga. Hatha is too extreme. And bringing the moderation between the two is like the balance, which I try to do, which you are doing, with many. Balance of everything. Balance of everything. दो एक्सट्रीम को आप ला रहे हैं साथ में और कोशिश कर रहे हैं कि दोनों एक्सट्रीम को एक मॉडरेशन में लेके चलें. And even though you're trying that, at times you also know how to manipulate those extremes as per the requirement. For making yourself a better human being, for bringing better things to human being. And I think I try to do that, you do that. That's one of the reasons we connect so well. Yes, वो रूमी की कहावत है, what you seek is seeking for you. Absolutely. So शायद इसीलिए हमारा ये रिश्ता है. बट क्या ये आपकी सोच हमेशा थी नहीं. कि ऐसे ये सेल्फ लव जो आप कह रही हैं, हम सबको आप ये सजेशन दे रही हैं कि सेल्फ लव करो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करो, ये कहाँ से आया, ये कब आया? Maybe शायद, I mean, there were some components inside me. It was not as evolved as it is now. क्योंकि पता ही नहीं था पहले. A lot of time I was trying to be what people wanted me to be. अच्छा. हाँ, I mean, सामने वाले को impress करना शायद एक important aspect था. But apart from that, खुद के लिए भी कुछ करना was there. But सिर्फ it was divided. But over a period of time, I think योग में जैसे आती गई, दो एंट्री योग में हुई थी फिजिकल लेवल पे, बट ग्रेजुअली आप योग में ना किसी भी लेवल पे एंट्री करें, इवेंचुअली जो योग का मेन एम है, बीइंग विथ योरसेल्फ, बीइंग वन विथ योरसेल्फ, कहीं ना कहीं ग्रेजुअली वो होने लगता है. कुछ लाइफ की कोई एक्सपीरियंस थी जो आपको इस मोड़ पे लेके आया, इस सोच पे लेके आया?
तो यू नो पीपल कीप आस्किंग मी व्हाट इज़ दैट मोमेंट विच चेंज्ड, और ऐसा क्या हुआ. मुझे लगता है कि यू नो एक शुरुआत हुई थी, जी. एंड जो कंसिस्टेंसी विच remained with that shuruat, that took me to a different level, you know, in my thought process, in my practice, in my thought process about others, you know, in like, am I hating others, or am I getting irritated with others, or I'm just accepting themselves as they are. I think काफ़ी अभी होने लग गया वैसा. Like I'm just trying to respect the disagreement with others and still accept them as they are. Because even I'm different, they are accepting me. तो भाई मुझे भी करना पड़ेगा. I mean करना चाहिए, and that is the right thing. So I think ये ना एक ऐसा एक्सप्लोरेशन है. मैं कहती रहती हूँ लोगों को, आई थिंक मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ये नया नहीं होगा. योग एक ऐसी जर्नी है जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है. क्या बात है. इट्स अ जर्नी विच विल गो ऑन एंड ऑन. इट हैज़ नो डेस्टिनेशन. मतलब डेस्टिनेशन का मतलब ही मौत हो गया, आप ख़त्म हो गए. तो ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है ना, अगर आज लगा भी कि अरे मुझे अपने बारे में पता है, आई नो दिस, आई एम गुड, कल को लगेगा कुछ और था इसके बाद. इट्स अ नॉन एंडिंग प्रोसेस. तो ये शुरुआत है, एंड आई एम एंजॉइंग दैट. और शायद क्या चलता ही रहेगा आगे. इब्तिदा है, इंतहा नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, यस. आपको अपने बारे में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है? आपकी मुस्कुराहट के अलावा. नहीं, वो मैं कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज इतनी मुस्कुराहट थी नहीं. जी. और जो लोग शूट करते हैं मेरा वीडियोस वगैरह, जी. उनसे पूछिए, बेचारे अच्छा. परेशान हो जाते हैं. शम्मी स्माइल, और जैसे कैमरा होता था मैं किसी को खाने जा रही हूँ. बट आई एम रियली वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज जब भी हम सीरियस हो जाते हैं ना, जी. सो काम के अनुसार भी लोग सीरियस होते हैं. दोज आर जी. रियली वेरी मच इनटू द वर्क, दे बिकम वेरी सीरियस. बट उसमें थोड़ा स्माइल ऐड कर दिया ना, तो थिंग्स चेंज अ लॉट. यू नो, इट वाइब्रेट्स इन अ डिफरेंट मैनर. सो दैट आई एम वर्किंग ऑन. आई थिंक आई डोंट गिव अप. क्या बात आई है. डोंट गिव अप. ये तो मैं मानूंगी. मैं कितनी बार भी गिरूँ ना, फिर से खड़ी होती हूँ कि हो जाएगा. एंड इवन इफ कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं ना अपने आप को 2 या 3 दिन देती हूँ. रो लो, मर लो, चिल्ला लो, कर लो, गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. क्या बात You है. know, nothing stays forever. क्या बात. So, in general, I think I'm very positive in nature. और मुझे हमेशा लगता है कि सामने अच्छा ही होगा. ये जिंदा दिली कहाँ से आती है कि मुझे काम भी करना है, मुझे लोगों को भी देखना है, मुझे अच्छा भी लगना है, मुझे कपड़े डिज़ाइन भी करने हैं, मुझे सिर्फ योगा ही नहीं, मैं कई बार पाई हूँ आपसे आयुर्वेदा के बारे में बात करते हुए, एलोपैथी के बारे में बात करते हुए. ये सब कहाँ से आता है? देखिए, ये सब तो मेरा फील्ड ही है वैसे. लाइक यू नो, हाँ. योग, सात्विक आहार, मिताहार, यू नो, लाइक नेचुरोपैथी, तो खान पान तो उसका पार्ट ही हो गया. आई हैव टू स्टडी. अच्छा. तो अगर मैं आप पढ़ाई लिखाई बहुत करती हैं, आई लव करती टू हैं. स्टडी. हाँ, काफ़ी मैं पढ़ती हूँ, और सामने वाले के साथ काम कर रही हूँ, तो वही आई मीन आई हैव टू हैव मोर नॉलेज, तभी तो उसने मुझे हायर किया है. क्या बात है. अच्छा, अब एक हम इनसे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे और देखते हैं शमी जी क्या जवाब देती रचना पूरे हैं. मस्त मूड में है आज. शमी जी, आपको अपने बारे में क्या चीज़ एक अच्छी नहीं लगती है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है? नहीं अच्छा लगना भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, हाँ. पर हम सब एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं. क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको अभी उस पर काम करना होगा या आपको कॉन्शियसली करना होगा? तो एक चीज़ जो मुझे अपने बारे में कभी अच्छी नहीं लगती थी, आई वॉज अ वेरी बैड लिसनर. अरे वाह. एंड आई फिगर्ड दैट आउट, एंड आई हैव रियली वर्कड ऑन दैट. अभी भी मुझे लगता है कभी कभी इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि नहीं, पहले मेरी बात सुनो. बट यू नो, लाइक बेचारा मेरा पति बोलता रहता है, भगवान ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिए, कम बोलो ज़्यादा सुनो. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू, यू नो, लाइक आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड लिसनर. ऑल्सो द काइंड ऑफ वर्क आई एम इनटू, लाइक कितनी कंसल्टिंग होती है. I think people feel better because there is somebody to listen to them. You know, I mean that is what is required. लिसनिंग तो बहुत बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है. किसी के पास टाइम ही नहीं किसी को सुनने का. तो मैंने काफ़ी काम किया उस पर, और काफ़ी हद तक आई थिंक आई हैव रियली वर्कड ऑन दैट. बट आई थिंक एक वो एरिया है जिस पे मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और मैं करूँगी. काफ़ी इम्प्रूव किया है, बट आई विल वर्क ऑन दैट एंड आई विल कंटिन्यू टू वर्क. आप जब अपनी दुनिया देखती हैं, एक हम सब इस एज में आ गए कि एक पैटर्न हो गया है कि हम कुछ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और कुछ आते हैं और चले जाते हैं. आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं? तो मुझे लगता है कि ना, और ये आपने ये पैटर्न नोटिस भी किया है कि नहीं? यस किया है. एंड
मेजॉरिटी पार्ट हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम अंदर से हैं. क्या बात है। You know, so if you are somebody very positive, genuinely, जी you will only attract positive people. मतलब आप देखेंगे ना, लाइक आप बात करती हैं, मैं वो करती हूँ, अरे वो कितना अच्छा है, पता है वो ऐसा है, बिकॉज वी अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ पीपल. शायद अंदर से हम वैसे हैं. सो नो, लाइक मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द पीपल आई अट्रैक्ट आर प्रीटी मच समवेयर लाइक मी, यू नो. तो लाइक सारे अच्छे लोग होते हैं काफ़ी. दे आर वेरी क्लीन पीपल, क्लीन हार्टेड, they are clear in mind, they are like very ambitious, not ambitious in the wrong term, very sportive, they want to do something in life, they want to make changes in people's life. So like majority part वैसे लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ. और अगर काम पे आए तो, क्योंकि आई वर्क एज अ थेरेपिस्ट, योगा थेरेपिस्ट, तो जिनको प्रॉब्लम्स होता है कुछ भी लेके, यू नो, बॉडी माइंड के लेवल पे, ऑफ कोर्स दे आर पीपल हु रीच आउट टू मी कि मे बी आई कैन हेल्प देम आउट विथ वॉट एवर एक्सपीरियंस और लाइक जो भी मैंने पढ़ाई लिखाई की है. तो ऐसे ही लोग हैं जिनको अट्रैक्ट करती हूँ मैं. आपने एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया है जिसके लोगों के सोच को चेंज करना, उससे डिसिप्लिन लाना, क्या ये आसान है लोगों में पॉजिटिव चेंज लाना, जिससे कि डिसिप्लिन लाइफ में आए, जिससे लाइटनेस लाइफ में आए, जिससे अम, अम, खुद के अंदर पीस रहे? क्या ये आसान है? क्योंकि आप एक थेरेपिस्ट हैं, तो आप बहुत लोगों को थेरेपी कराती हैं, तो क्या ये आसान है? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. कुछ लोग तो हैं भाई, एक ये लोगों का पर्सनालिटी होता है. जी कुछ हैं जो काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं. जी तो अगर वो योग में मेरे साथ आ रहे हैं तो वो डिसिप्लिन कंपोनेंट और द एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी इज ऑलरेडी देयर. जी आई जस्ट हैव टू ट्यून इट टू योग. तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगता है. कैसे करती हैं योग में ये? हम आम लोग ये बात शायद समझ नहीं पाएंगे, योग में कन्वर्ट करना ये कैसे, ये क्या है? तो यू क्या नो, क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ, तो ये एक बहुत ही, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है. जी अगर सपोज किसी ने प्राणायाम से स्टार्ट किया, अपनी जी ज़िंदगी में प्राणायाम को लाएं, या किसी ने आसन से स्टार्ट किया, या योग के किसी भी कंपोनेंट से स्टार्ट किया, उनको लगता है कि योग वही है. बट योग इज लाइक एवरी सिंगल मोमेंट. आई मीन, आई कैन डू ऑल द प्रैक्टिस, स्टिल आई कैन नॉट बी अ योगी. एंड यू कैन डू नथिंग, स्टिल यू कैन बी अ योगी. सो अच्छा एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ in which you are at one with the moment, that is the moment of being, having, like you are in a yogic movement, yogic moment. So अगर हम simple definition में योग के जाए, it is like these are the different tools or the instruments which takes you into self realization. Remember, self was always there. जी कहीं ना कहीं in the process of your life you lost it. जी हम फिर से वो कोशिश करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कि हम उसको फिर से रियलाइज करें जो ऑलरेडी है हमारे में, जी यू नो. सो वो हर एक मोमेंट आपकी ज़िंदगी का विच ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर सेल्फ इज योगिक मोमेंट. और आपको लगता है कि आपकी हुनर से, आपकी कला से इस पे लोगों को लाना इतना मुश्किल बात नहीं है, ये आप कहना चाह रही हैं? मुश्किल कभी कभी तो हो जाती है क्योंकि इसमें काफ़ी डिसिप्लिन चाहिए होता है. क्योंकि अगले को भी तो हाँ, होना चाहिए कि और मतलब काफ़ी सिर्फ आप डिसिप्लिन ही के चाहिए था. एग्जैक्टली. और बीइंग अ डिसिप्लिन पर्सन इज नॉट दैट इजी. इट नीड्स लॉट ऑफ कमिटमेंट. जी And it's very easy, to like be on the bed and just lie down, watch the TV, eat whatever you feel like. But you need discipline, rigorous discipline, to wake up every day at the same time, do your practice, eat right, think right. It's like the training the mind, like we have trained the mind कि भाई हमें भूख लग रही है, ये खाना देख के माइंड को हम लोगों ने ट्रेन किया है क्योंकि टंग से पता है कि भाई ये खाना है. बट इट नीड्स लॉट ऑफ ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड. सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें कि भाई खाने का क्या, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो हम खाना खाते हैं, बेसिकली जो भी फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स, जिसमें प्राण होता है, उस प्राण को हम अपने बॉडी को दे रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग द बॉडी प्राणिक. तो बेसिकली द फूड विच वी आर टेकिंग, the job of the food is to nourish you from inside and outside. If you understand that part, then you'll be very careful. And I'm not saying कि सब बाहर का खाना छोड़ दो या वो मत खाओ जो हेल्दी नहीं है. इट्स ओके, हमारा कल्चर है, वी हैव डेवलप्ड. बट इफ दैट इज द ओनली थिंग यू डू, देन इट्स अ प्रॉब्लम. सो लाइक अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट एंड स्टिकिंग टू दैट नीड्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन. अम, मैंने लोगों के साथ भी बहुत डील किया है, पर मुझे कहीं लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हाँ, हम सब जानते हैं, पर हम उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं.
और वो वापस आ जाता है वो डिसिप्लिन पे। बात हमें पता है ये सही नहीं है, हमें पता है ये हमारे लिए गलत है, पर कहीं वो एक कहावत है कि अगर आपके दिल के अंदर वल्केनो है तो आप उसमें फूल कैसे खिलाएंगे? सही बात है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो अ, वो वल्केनो जो रेस्टलेसनेस है इंसान की, अ, मुझे लगता है कि उस पे काम करना शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि अगर आपके अंदर पीस आ जाएगा तो वो डिसिप्लिन भी आ जाएगा, सेल्फ लव भी आ जाएगा, और आपके अंदर फूल भी खिलेंगे, बिल्कुल आप खुश भी रहेंगे, बिल्कुल। और दुनिया से एक्सेप्टेंस भी होगी। बट आई थिंक उसके पहले ये इम्पोर्टेंट होगा, पहले आप एक्सेप्ट करें कि आप आपके अंदर वो वोल्केनो है। बिल्कुल 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 अगर आपने बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं किया तो काम कहाँ से करेंगे? सो आई बिल्कुल। थिंक दैट्स वन थिंग। सो मैंने रियलाइज किया कि व्हेन आई वर्क विद पीपल, इवन दो द वे आई वांट देम टू शेप, अगर आई मीन फ्रॉम योगिक पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू चेंज देयर पर्सनैलिटी, बिल्कुल एवरीबडी शुड बी व्हाट दे आर। यूनिक टू हाँ देमसेल्फ। बिल्कुल। बट हम जब किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो आपको एक तरीके से करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग बिल्कुल उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये तो रहता है कि ये सही चीज़ है, और कुछ ना कुछ जब प्रॉब्लम हुआ, झटका लगती है लाइफ में, तो तुरंत लाइन पे आ जाते हैं और वो फॉलो करने लगते हैं। शमी, यू सीम टू बी अ वुमन ऑफ एक्सट्रीम क्लैरिटी। अब आगे क्या? आगे कोशिश है कि योग में ही ये मेरा फील्ड, आई मीन आई लव दिस, इट्स माई जी। पैशन, हम्म। एंड फॉर्चुनेटली आई वर्क इन दिस फील्ड। अब ये है कि मैं किस तरह से उसको और आगे ले जाऊं कि और लोगों के बीच पहुंच पाऊं, और लोगों को इस तरह से कन्विंस करूं कि लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। ऑफ कोर्स। Life is so beautiful. बिल्कुल। But to enjoy the life, you need to be healthy, not only physically, but also mentally, शायद मेंटली। psychologically, emotionally, and spiritually. You need a very good combination and balance. और अगर आपने एक भी aspect को पकड़ा ना और पकड़े रहे, सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। सो कोशिश ये रहती है कि try and reach out to different people in different way. So like we work with NGOs की ज़्यादा, मतलब कि क्या होता है, कितने लोगों को जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उनको लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि योगा के थ्रू पहले तो उनको नॉर्मल करें, तो उनको ये पता चले कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है, बस एक हर्डल था, विल सॉर्ट इट आउट। तो यही कोशिश है कि भाई जितना आगे ले चलें, जिस तरीके से ले चलें, आई मीन बस हेल्दी रखें लोगों को, कि वो सही सोचें, खुश रहें और फिट रहें। I mean, eventually we have to realize body is the only instrument through which you can have that cosmic experience. अगर आपका शरीर ही नहीं सही है तो आप कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। बात तो सही है। और अगर आपका और बहुत कुछ फिजिकल इलनेस आती है आपके मेंटल इलनेस से, बिल्कुल तो अगर आप मेंटली काम हैं तो शायद फिजिकली भी आपका बिल्कुल। चांसेस आपका फिट रहने का कहीं ज़्यादा है। यस यस। तो योग में जैसे कोशास होते हैं, जी 5 होते हैं। जो तीसरा कोशा है वो मनोमया है, जी जो कि मन पे काम करता है, और जो पहला है वो अन्नमया है, जी जो कि बॉडी पे काम करता है। जो भी प्रॉब्लम बॉडी पे आपको दिखते हैं, दैट एक्चुअली स्टार्ट्स एट द मेंटल लेवल, मनोमया पे, एंड देयर आर लॉट ऑफ सिग्नल्स जो आते रहते हैं, और अगर आपने नहीं सॉर्ट आउट किया, it won't have any option but to get manifested on the physical level. So it's very important to work on each component. अगर आपने नहीं किया ना बेचारा, I mean body, your mind is constantly trying to be the best, and you are constantly abusing those. यस एंड ऑफ कोर्स आई एग्री, आई टोटली एग्री। आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो कहती हूँ भाई, डिस्कवर योगा, डिस्कवर योर सेल्फ, क्योंकि योग इज़ अ जर्नी विदाउट एनी डेस्टिनेशन। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन इसका एक्सप्लोरेशन ख़त्म नहीं होगा, और इन द प्रोसेस यू विल एंड अप बीइंग अ वेरी इवॉल्व्ड पर्सन। सो क्या डू बात, दैट। क्या बात है। साहिर लुधियानवी एक बहुत खूबसूरत, आप लोग सब ने उनका गाना सुना होगा। उसकी एक पंक्तियाँ हैं जिसे कहते हैं, खुशी और गम में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं ज़िंदगी को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये खुशी और ये गम भी टेम्पररी है। अपने सोल को इनरिच करें, और कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जैसे शमी जी ने कहा, अगर खुद के साथ प्यार है, खुद के साथ अवेयरनेस है, क्योंकि हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं, और शायद